السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ چوتھی فصل جو وقف کے احکام میں ہے، میں نے آپ کو بتلایا اس سے پہلے والے سبق میں بھی کہ تمہیدی طور پہ وقف سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بیان کی جاتی ہیں، جس سے باب الوقف میں آپ کو بصیرت حاصل ہوگی۔ چنانچہ بتلایا گیا تھا کہ وقف کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محل وقف اور ایک کیفیت وقف۔ محل وقف سے متعلق بھی آپ کو بتلا دیا کہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، وقف تام، کافی، حسن اور قبیح۔ ہر ایک کی تعریف بھی آپ کو بتلا دی گئی۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ کیفیت وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف کیسے کیا جائے۔ کیفیت وقف کی 4 صورتیں آپ کو بتلائی گئی تھیں: کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل، کیفیت وقف بلحاظ وصل اور کیفیت وقف بلحاظ رسم۔ کیفیت وقف بلحاظ ادا کی 4 صورتیں آپ کو بتلائی گئیں: وقف بالاسکان، بالاظہار، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالابدال۔ چاروں کی جو ہے تعریف بھی آپ کو بتلائی گئی۔ دوسری قسم جو ہے کیفیت وقف بلحاظ اصل کی تھی، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، وہ آج کے سبق میں آپ کو بتلانا ہے۔ کیفیت وقف بلحاظ اصل کی 4 صورتیں ہیں: وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات۔ ہر ایک کی تعریف یہ ہے کہ موقوف علیہ، آپ کو پہلے بتلایا گیا جس پر وقف کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے موقوف علیہ۔ حرف موقوف علیہ اگر پہلے سے ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالسکون۔ پہلے آیا ہے وقف بالاسکان، اسکان میں ہوتا ہے ساکن کرنا، یعنی حرف موقوف علیہ متحرک ہوتا ہے، اسے ساکن کر کے وقف کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان۔ اور یہ جو ہے سکون ہے، سکون سکن یسکن سے ساکن ہونا، تو پہلے سے ہی جو ہے یہ حرف موقوف علیہ ساکن ہوتا ہے۔ تو اگر حرف موقوف علیہ ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالسکون، جیسے فلا تقہر، وانحر وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے را پہلے سے ساکن ہے تو اس کو کہیں گے وقف بالسکون۔ دوسری قسم ہے وقف بالتشدید۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اگر حرف موقوف علیہ مشدد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالتشدید، جیسے عدو، وا مشدد ہے، اس پر وقف کریں گے تو آپ پڑھیں گے عدو۔ وقف بالسکون یہ جو ہے محض حرف ساکن پر ہوگا اور وقف بالتشدید حرف مشدد پر ہوگا۔ آگے ہے وقف بالاظہار، تیسری قسم وقف بالاظہار۔ وقف بالاظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حرف موقوف علیہ حرف مدغم یا حرف مخفی واقع ہو، حرف مدغم یعنی ایسا حرف ہے جس کا ادغام کیا جا رہا تھا، حرف مخفی یعنی جس کا اخفا کیا جا رہا تھا، کب؟ وصل کی حالت میں، لیکن اب جو ہے اس پر آپ نے وقف کر دیا تو اس کو کہا جاتا ہے حرف موقوف علیہ مدغم یا مخفی۔ تو اب جب وہاں پر وقف کریں گے حرف موقوف علیہ مدغم یا حرف موقوف علیہ مخفی پر، تو اب ظاہر سی بات ہے ادغام کی وجہ سے پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو رہا تھا، مخفی وہاں پر اخفا کیا جا رہا تھا، تو اب جب جو ہے وہاں پر آپ وقف کر دیں گے تو اب اتصال حرفین ختم ہو جائے گا، تو اب یہاں ادغام بھی نہیں ہوگا اور اخفا بھی نہیں ہوگا۔ تو اب جو یہاں پہ کریں گے تو حرف موقوف علیہ جو تھا مدغم یا مخفی، اب اسے ظاہر کریں گے تو اس کو کہیں گے وقف بالاظہار۔ یعنی آپ آسانی کے لیے اتنا سمجھیے کہ حرف موقوف علیہ مدغم یا مخفی واقع ہو اور اس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا وقف بالاظہار۔
जैसे मन कान यहाँ पे इख्फा करते हैं नून में, लेकिन अब जो है नून पर, मन के नून पे वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे मन, यानी नून को मुजहरा के साथ पढ़ेंगे, नून मुजहरा के साथ। इसी तरह से मन यकूलु, नून का इदगाम कर रहे थे, मुदगम था नून, लेकिन अब जब वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे, मन यकूल, तो अब पढ़ेंगे मन। गर्जे यहाँ पर मन पे वक्फ नहीं है, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो हरफे मौकूफ अलैह मुदगम या मुख्फा वाक़े हो तो उस पर जो वक्फ किया जाएगा उसको कहेंगे वक्फ बिल इजहार। बात इसमें समझ में आ गई होगी कि हरफे वक्फ बिल इजहार जो है हरफे मुदगम या हरफे मुख्फा पर होता है। एक है वक्फ बिल इस्बात। वक्फ बिल इस्बात का मतलब है साबित करने के जरिए वक्फ करना। इसका मतलब ये होता है कि हरफे मौकूफ अलैह अगर हरफे मद वाक़े हो तो उसको कहेंगे वक्फ बिल इस्बात। हरफे मौकूफ अलैह वस्ल की हालत में अगर हरफे मद रहता है तो वो जो है क्या होता है, गिर जाता है दरमियान में आने की वजह से। जैसे क़ाल अलहम्द, क़ाला अलहम्द से क़ाल अलहम्द, इस्तबक़ा अलबाब से इस्तबक़ल बाब पढ़ते हैं। अक़ीमुस सलाह में वाव गिरा देते हैं। अल्लज़ी रुतज़ा में जो है या गिरा दिया। तो ये हरफ मद को जो आप गिराते हैं ये वस्ली हालत में गिराते हैं। जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हरफ मद जो है बाकी रहेगा, उसको कहते हैं वक्फ बिल इस्बात। जैसे क़ाल अलहम्द से क़ाला, इस्तबक़ल बाब से इस्तबक़ा, फिल अर्ज़ से फ़ी वगैरह। बहरहाल ये चार किस्में हैं वक्फ बेअतबार असल की चार किस्में, वक्फ बिस्सुकून, बित्तशदीद, बिल इजहार और बिल इस्बात। वक्फ बिस्सुकून का मतलब है कि हरफ मौकूफ अलैह पहले से साकिन हो। बित्तशदीद का मतलब है कि हरफ मौकूफ अलैह मुशद्दद हो। बिल इजहार का मतलब ये है कि हरफ मौकूफ अलैह मुदगम या मुख्फा वाक़े हो। बिल इस्बात का मतलब है कि हरफ मौकूफ अलैह हरफ मद वाक़े हो, तो उसको कहा जाता है वक्फ बिल इस्बात। तीसरी किस्म आपको बतलाई थी वक्फ बलिहाज वस्ल। वक्फ बलिहाज वस्ल यानी वस्ल में जो पढ़ने का तरीका होता है उसको कहा जाता है वक्फ बलिहाज वस्ल। उसकी दो किस्में हैं, वक्फ मुवाफिक वस्ल व रस्म। वक्फ मुवाफिक वस्ल व रस्म यानी मुवाफिक वस्ल भी है, मुवाफिक रस्म भी है। यानी जिस तरह से वक्फ में कलमा पढ़ा जाता है उसी तरह से वो लिखा भी गया है। ये वस्ल में जिस तरह कलमा पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा भी गया है, तो जब लिखा गया तो वैसे वक्फ भी करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, वक्फ मुवाफिक वस्ल व रस्म मतलब ये होता है कि जिस कलमे पर वक्फ किया गया है वो वस्लन और रस्मन दोनों एतबार से क्या हो, मुत्तहिद हो। वस्लन और रस्मन दोनों एतबार से मुत्तहिद हो। जैसे किताबियह, मालियह, यहाँ पे वक्फ करेंगे आप तो यहाँ पर जो है हाय सक्ता जो आप पढ़ते हैं ये लिखी हुई भी है और हाय सक्ता जो है दरमियान में भी जो है साकिन ही पढ़ी जाती है और साकिन लिखी है, तो वस्लन और रस्मन दोनों एक हुए, इसलिए इसको कहा जाता है वक्फ मुवाफिक वस्ल व मुवाफिक रस्म, या जो है मुख्तसर करने के लिए मुवाफिक वस्ल व रस्म कहा जाता है। दूसरी किस्म है मुवाफिक वस्ल व मुखालिफ रस्म। मुखालिफ रस्म यानी वक्फ तो आप करते हैं कैसे, जैसे जो है वस्ल में पढ़ा जाता है, लेकिन आप जब वक्फ करते हैं तो रस्म के मुखालिफ हो जाता है। तो आप ये कहिए कि जिस कलमे पर वक्फ किया जाता है वो सिर्फ वस्लन मुत्तहिद हो, रस्मन मुत्तहिद ना हो, रस्मन जो है खिलाफ हो। मसलन समूद, समूद आप पढ़ते हैं समूद, हालांकि समूद में जो है दाल के बाद अलिफ है, लिततलु वाव के बाद अलिफ है, लेकिन जब आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे समूद लिततलु। तब यहाँ जो है मुवाफिक वस्ल कैसे है, मुवाफिक वस्ल तो इसलिए है कि दाल पे ज़बर ही पहले पढ़ते थे, अलिफ नहीं पढ़ते थे। लिततलु में वाव पे ज़बर पढ़ते थे, उसके बाद वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाता था।
तो वस्ल के मुवाफिक तो ये वक्फ हुआ, लेकिन अलिफ लिखा हुआ है और अलिफ को वक्फ में पढ़ा नहीं जाता, तो इसको कहेंगे मुखालिफ रस्म। जी, चौथी किस्म थी वक्फ बलिहाज रस्म, यानी रस्म के मुताबिक, किताबत के मुताबिक वक्फ करना। उसकी भी दो किस्में हैं, मुवाफिक रस्म व वस्ल, यानी रस्म के भी मुवाफिक हो और वस्ल के भी मुवाफिक हो। जैसे वस्ल में पढ़ा जाता था वैसे लिखा भी जाता है। और चौथी किस्म है मुवाफिक रस्म व मुखालिफ वस्ल, यानी रस्म के तो मुवाफिक है लेकिन वस्ल के मुखालिफ है। मुवाफिक रस्म और वस्ल, मुवाफिक रस्म और वस्ल दोनों इसमें इसकी दोनों के एतबार से ये मुवाफिक है। जैसे आपको बतलाया था कि किताबियह वसलन भी मुवाफिक है सकता है साकिन पढ़ी जाती है और वस्ल में भी पढ़ी जाती है और वक्फ में भी इसी तरह से है, यानी रस्म के मुवाफिक है। मुवाफिक रस्म और मुखालिफ वस्ल, यानी जिस कलमे पर वक्फ किया गया है वो सिर्फ रस्मन मुत्तहिद है, वस्लन मुत्तहिद नहीं, वस्लन खिलाफ है। जैसे लाकिन्नहु अल्लाह में अलिफ नहीं पढ़ा जाता लाकिन्न के बाद वाला, और अना ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम जो है इसके बाद जो अलिफ है वो वस्लन नहीं पढ़ा जाता लेकिन वक्फन पढ़ा जाता है। तो वक्फ के मुवाफिक हुआ कि अलिफ लिखा है और अलिफ के साथ वक्फ किया जाता है लाकिन्ना, अना वगैरह, लेकिन वस्ल के खिलाफ हो क्योंकि वस्ल में अलिफ नहीं पढ़ा जाता था, तो इसलिए उसको कहेंगे रस्मन मुत्तहिद हो और वस्लन खिलाफ हो, यानी मुवाफिक रस्म और मुखालिफ वस्ल। ये चार किस्में हुई कैफियत वक्फ बलिहाज वस्ल और रस्म की मिलाकर के चार किस्में हुई। और भी इसमें बहुत सी मज़ीद तफसील है जिसको आप बड़ी किताबों में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक वक्फ की तकसीम होती बेएतबार अहवाल कारी, उसकी चार सूरतें हैं, वक्फ इख्तियारी, इज़्तिरारी, इंतज़ारी, इख्तिबारी। वक्फ इख्तियारी का मतलब होता है कि जो बगैर किसी उज़्र के अपने इरादे से किया जाए, और ये वक्फ जो है हर आयत पर और अलामात वक्फ पर हो सकता है। इज़्तिरारी इज़्तिरार से बना है कि जो मजबूरन वक्फ हो जाए, उज़्र की वजह से हो जाए, यानी इरादा नहीं था, मसलन खांसी आ गई, छींक आ गई, सांस फूलने लगा, तो अब आप क्या करेंगे, वक्फ करेंगे, तो इसको कहा जाता है वक्फ इज़्तिरारी। और वक्फ इंतज़ारी एक है। वक्फ इंतज़ारी का मतलब होता है कि किसी क़िराअत या रावी की रिवायत को पूरा करना हो तो वहाँ पर जो वक्फ किया जाए उसको कहा जाता है वक्फ इंतज़ारी। यानी क़ुर्राए सबा में से या क़ुर्राए अशरा में से क़िरात को पूरा करना हो तो एक आयत पर वक्फ करेंगे। मसलन इमाम नाफ़े की क़िरात आपने पढ़ी, इमाम नाफ़े के शागिर्दों में से वर्ष और कालून की आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरे इमाम के रावियों की पढ़ेंगे या उस इमाम की क़िरात पढ़ेंगे। तो एक अब जो वक्फ आपने किया है ये इस इंतज़ार में किया है कि दूसरे इमाम की क़िरात पढ़ना है। एक है वक्फ इख्तिबारी। इख्तिबार के माने आते हैं जांचना, इम्तिहान लेना। तो ये वक्फ वो कहलाता है जो किसी कलमे पर कैफियत वक्फ या महल वक्फ को समझने या समझाने की गरज से किया जाए। तो ये अहवाल कारी के एतबार से चार किस्में हैं। फिर जो है आप खुलासे के तौर पर सुन लें कि महल वक्फ की चार किस्में हैं, ताम, काफ़ी, हसन और कबीह। और कैफियत वक्फ की जो है चार किस्में हैं, बलिहाज अदा, बलिहाज अस्ल, बलिहाज वस्ल, बलिहाज रस्म। बलिहाज अदा की जो है चार किस्में हैं, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल रोम, वक्फ बिल इब्दाल। कैफियत वक्फ बलिहाज असल की भी चार सूरतें हैं, चार किस्में हैं, वक्फ बिल सुकून, वक्फ बिल तशदीद, वक्फ बिल इजहार, वक्फ बिल इस्बात। कैफियत वक्फ बलिहाज वस्ल की दो सूरतें हैं,
वक्फ मुवाफिक वस्ल व रस्म, वक्फ मुवाफिक वस्ल व मुखालिफ रस्म। और कैफियत वक्फ बलिहाज रस्म की भी दो सूरतें हैं, वक्फ मुवाफिक रस्म व वस्ल और वक्फ मुवाफिक रस्म और मुखालिफ वस्ल। बेअतबार अहवाल कारी की भी चार किस्में हैं, वक्फ इख्तियारी, इज़्तिरारी, इंतज़ारी और इख्तिबारी। हर एक की तारीफ जो है आपके सामने भी तफसील आ गई है। अब हम जो है यहाँ से अब सबक शुरू करते हैं तमहीद के बाद। उसमें जो है इंशाअल्लाह ये तमहीद अगर आपके जहन में है तो सबक जो है आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, इसीलिए तमहीद बयान भी की गई है। चलिए पढ़ते हैं इबारत। चौथी फसल वक्फ के अहकाम में। वक्फ के माना अखीर कलमे गैर मौसूल पर सांस का तोड़ना। यहाँ जो है वक्फ का माना जो मुसन्निफ ने बयान किया है ये वक्फ का इस्तिलाही माना है। लुग़वी माना आपको बतलाया था कि ठहरना और रुकना, किसी काम से या किसी बात से रुक जाना, ठहर जाना वक्फ कहलाता है। इस्तिलाह के एतबार से वक्फ किसी कहते हैं, कह रहे हैं कि अखीर कलमे गैर मौसूल पर, यानी किसी कलमे के अखीर पर, ऐसे कलमे के अखीर पर जो बात से मिला हुआ न हो, उस पर जो है सांस का तोड़ना। जब सांस तोड़ेंगे तो आवाज़ भी टूट जाएगी। तो आपको इसलिए मैंने तारीफ बतलाया था कि किसी कलमे गैर मौसूल पर, यानी जो अपने बात से मिला हुआ न हो, सांस तोड़कर इतनी देर ठहरना जितनी देर में एक मर्तबा सांस ली जाती है। तो आप इसको आसानी से यूं कह सकते हैं कि वक्फ की तारीफ है कलमे गैर मौसूल के अखीर पर सांस और आवाज़ तोड़कर इतनी देर ठहरना जितनी देर में एक मर्तबा सांस ली जाती है। यहाँ पर देखिए कलमे गैर मौसूल क्यों कहा है। कलमे गैर मौसूल इसलिए कहा है कि अगर कोई कलमा माबाद से मिला करके लिखा हुआ है तो अब वहाँ पर महल्ले वक्फ न होने की वजह से वक्फ करना जायज़ और सही नहीं होगा। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, तो अलहम्दु ये सब मिला के लिखा हुआ, तो अब आप वक्फ करें अल या अलहम, तो ये जायज़ नहीं है। ये तो एक ही कलमा अल्हम्दु, लेकिन दो कलमा भी मिलाकर कभी लिखा जाता है, जैसे बिइसा मा, बिइसा अलग है, माँ अलग है, तो अगर मिला के लिखा हुआ है तो बिइसा पे वक्फ करना सही नहीं होगा, माँ पे वक्फ करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कलमा गैर मौसूल, यानी जो अपने माँ बाप से मिला करके लिखा हुआ न हो। बहरहाल वक्फ की तारीफ होगी अखीर कलमा गैर मौसूल पर सांस तोड़ना। अब सांस तोड़ करके क्या करेंगे, आगे से पढ़ेंगे या माक़बल से या उस कलमे को लौटाएंगे, उसका मसला बतला रहे हैं। अब अगर वहां पर कोई आयत है या कोई वक्फ औक़ाफ़ मुअतबरा में से है तो बाद के कलमे से इब्तिदा करे, वरना जिस कलमे पर सांस तोड़े उसको इआदा करे। अगर कोई आयत है तो आयत पर वक्फ करने के बाद अब जो है आगे से पढ़ेगा, इब्तिदा करेगा। एक बात यहां पर जहन में आप रखिए कि एक है इब्तिदा और एक है इआदा। जहां पर आप वक्फ करते हैं उसके आगे से पढ़ने को इब्तिदा कहा जाता है, और अगर उस कलमे को जिस पर आपने वक्फ किया है उसको लौटा करके या उससे पहले एक आध दो कलमे को लौटा करके आप पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इआदा। तो अब ये बतलाना चाह रहे हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कि जब आप वक्फ करेंगे तो कहाँ इआदा होगा और कहाँ इब्तिदा होगी, तो उसको बतलाया मुसन्निफ ने कि अगर वक्फ करने के बाद अगर कोई आयत है, यानी आयत पर आप वक्फ कर रहे हैं, चाहे वो आयत लाही क्यों ना हो, लेकिन आपने वक्फ कर दिया। जैसे बहुत सी सूरतें हैं जिसमें आप जो है लगातार देखेंगे कि गोल दायरा जो आयत का निशान है उसके ऊपर जो है ला लिखा हुआ है, तो आयत मुस्तकिल हो या आयत ला हो, उस पर वक्फ करने के बाद इब्तिदा होगी। या यह कि कोई वक्फ जो है औक़ाफ़ मुअतबरा में से है। औक़ाफ़ मुअतबरा का मतलब जिस जगह पर रुकने का एतबार किया जाता है, जिस वक्फ का एतबार किया गया है,
اہل فن نے اس کو معتبر مانا ہے۔ اوقاف معتبرہ کے نشانات جو ہے آپ کو قرآن میں ملیں گے، جیسے میم ہے، طا ہے، جیم ہے، زا ہے، صاد ہے، یہ سب اوقاف معتبرہ۔ اگر ایسی جگہ وقف کرتے ہیں آیت کے درمیان میں، آیت پر ہے تو خود ہی جو ہے وہ ایک بتلا دی کہ اگر کوئی آیت ہے، اب آیت کے درمیان میں اگر اس طرح کی علامات ملتی ہیں، میم، طا، جیم، زا یا صاد وغیرہ، تو وہاں پر وقف کرنے کے بعد اب جو ہے ابتدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ جس کلمے پر سانس توڑے اس کو اعادہ کرے۔ اگر یہ جو ہے علامات نہیں ہیں، علامات یہ سب نہیں ہیں، تو پھر اب کیا کرے گا؟ اب جو ہے اس کلمے کو جس پر اس نے وقف کیا ہے اس کلمے کو لوٹائے، یا اس کے پہلے سے ایک آدھ دو کلمہ اور بھی لوٹا لے وے، اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اور وسط کلمہ پر اور ایسا ہی جو کلمہ دوسرے کلمے سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ کبھی ایک ہی کلمہ ہے اور اس کے بیچ میں آپ وقف کرنا چاہیں تو جائز نہیں، کیونکہ وہ محل وقفی نہیں۔ اسی طرح سے دو کلمہ ہے لیکن ملا کر کے لکھ دیا گیا، تو جب ملا کر کے لکھ دیا جائے گا تو وقف کے مسئلے میں وہ ایک کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی آپ وقف نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو بتلایا گیا کہ الحمدللہ، الحمد یہ پورا ہے، اب آپ جو ہے رک رہے یا الحمد، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے درمیانے کلمہ ہے۔ اسی طرح سے ایک کلمہ دوسرے سے ملا کر کے لکھا ہوا ہے، جیسے بئسما ملا کر کے لکھا ہوا ہے، تو اب بئس پر جو ہے وقف کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے یہ بئسما جب ملا کر کے لکھ دیا گیا تو وقف کے مسئلے میں جو ہے یہ ایک کلمے کا حکم رکھتا ہے۔ تو اور اگر ایسا ہی ابتدا اور اعادہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی درمیانے کلمہ سے وسط کلمہ سے جس طرح سے وسط کلمہ پر وقف صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے اس سے اعادہ بھی جائز نہیں ہے، اعادہ بھی جائز نہیں ہے اور ابتدا بھی جائز نہیں، کیونکہ وسط کلمہ جو ہے نہ تو محل وقف ہے، نہ محل ابتدا ہے، نہ محل اعادہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک محل ہونا چاہیے۔ اگر محل میں ہے تب تو صحیح ہے، غیر محل میں جو ہے یہ کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے کیا کریں گے آپ؟ وسط کلمہ پر نہ تو وقف کریں گے اور نہ وسط کلمہ سے جو ہے ابتدا اور اعادہ کریں گے۔ اسی کو مصنف نے فرمایا ہے، اور وسط کلمہ پر اور ایسا ہی جو کلمہ دوسرے کلمے سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں، ایسا ہی ابتدا اور اعادہ بھی جائز نہیں۔ اب آگے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وقف کی جو قسمیں ابھی آپ کو بتلائی گئی ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا اسی لیے کہ تمہید آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کتاب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ تمہید میں جو باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں اس کا جو ہے یہاں پر آپ انطباق کریں گے اور اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں، اگلے سبق میں جو ہے انشاءاللہ اب معلوم ہونا چاہیے سے لے کر کے جو ہے آپ کو بتلایا جائے گا، اور وہاں پہ کون کون سی صورتیں آتی ہیں آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ اور سمجھتے رہیے گا۔ تمہید جو ہے اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس لیے تمہید کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔